Hello students, myself Professor Deepak Saini. Today we will do the human female reproductive system. Human female reproductive system is composed of pair of ovaries, pair of oviduct, then comes the uterus, cervix, vagina and the external genitalia. We will take each part separately. This female reproductive system is present in the pelvic region. And first of all we will take the ovary. Ovary is present in the upper pelvic cavity. It has a length of around 2 to 4 centimeter, breadth of around 1.5 centimeter, and the thickness is of around 1 centimeter is there. And it is held at its position by the different ligaments are there. This is ovarian ligament that will help in joining the ovary with the body of the uterus. Then this is another suspensory ligament is there. Suspensory ligament will help in joining the ovary with our dorsal body wall is there. With our dorsal body wall. Then this is you can see this is a diagram also. This is the ovarian ligament is there. This is the suspensory ligament is there. And this is a broad ligament. Broad ligament will also help in keeping the uterus at its position. And it has different parts. The parts below the ovary is called as a mesometrium. The part above the ovary is called as a mesosalpinx. And this is a mesovarium. We can also say that broad ligament is attached with the ovary by the mesovarium. Or we can also say that mesovarium will also help in joining the ovary with our dorsal body wall. So this is basic how the ovary is suspended by the different ligament. That different ligaments are broad ligament, suspensory ligament, and then comes the ovarian ligament. If we will look into the anatomy of the ovary, we will say it is made up of 3 layers are there. Outer layer is basically called as an visceral epithelium. Then comes the germinal epithelium. Then comes the tunica albuginea. The area enclosed within the ovary is called as a stroma. It has 2 parts, that is outer part is called as a cortex and inner part is called as a stroma. This is the outer part is basically cortex and inner part is called as a stroma. Even there is a blood supply in the ovaries is there. The basically the central part जिसको medulla कहते हैं, they mainly contain the blood vessels and elastic fibers. जो outer part है cortex है, उसके अंदर follicles होते हैं, spindle shaped cells होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं और कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं. अब इसमें ये जो फॉलिकल्स कैसे बनती है उसके बारे में हम देखेंगे. इसमें एक प्रोसेस आता है oogenesis. oogenesis में जैसे आप देखते हो कैसे ओवम बनता है, तो oogenesis जो है बेसिकली 3 फेजेस में हम पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज. इसमें जो oogenesis में जो मल्टीप्लिकेटिव फेज है वो बिफोर बर्थ ही हो जाती है, फीटल स्टेज में हो जाती है, जिसमें जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड करके दे प्रोड्यूस oogonia. अराउंड 2 million oogonias आर प्रोड्यूस्ड. दे आर बिफोर द बर्थ दे आर प्रोड्यूस्ड. एंड व्हाट हैपेंस दिस oogonia, ठीक है, दे गेट सराउंडेड बाय द granulosa cells. दिस granulosa cells they are also originated from the germinal epithelium and they are also equivalent to the oogonia. oogonia के आसपास एक granulosa cells आ जाएंगे. वो जो granulosa के cells होंगे फ्लैट होंगे तो हम उसको कहेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल्स. फिर उसके बाद वो थोड़े से सेल इलोंगेट हो जाते हैं, कुबाइटल शेप बन जाते हैं, तो हम उसको कहने शुरू कर देते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स. व्हेन दैट oogonia is get surrounded by this granulosa cells which are cuboidal, then I named this structure as in primary follicles are there. ये देखा गया कि बिटवीन द बर्थ एंड द प्यूबर्टी, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो डीजनरेट कर जाती हैं, ठीक है, सिर्फ so that only 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाती हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज देयर. और इसमें से यही आगे जो है ओवम बनाएगी. अपने लाइफ टाइम में फीमेल जो है दे प्रोड्यूस अराउंड 450 ओवम. 450 तक ओवम जो है वो अपने लाइफ टाइम के अंदर प्रोड्यूस करती हैं. तो इसमें हम कैसे देखेंगे कि कैसे प्राइमोडियल फॉलिकल से एक मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बनती है. इसको हम फॉलिकुलोजेनेसिस भी कह देते हैं. वी आल्सो नेम इट एज एन फॉलिकुलोजेनेसिस. ये आप देख रहे हो कैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द प्राइमोडियल फॉलिकल, देन कम द प्राइमरी फॉलिकल. अब क्या होता है जब प्यूबर्टी के बाद जब इसके अंदर GnRH प्रोड्यूस होना शुरू होता है हाइपोथैलेमस से, वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाता है और वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाके FSH और LH की प्रोडक्शन करेगा. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH व्हाट हैपन्स, मोर granulosa cells आर डिपॉजिटेड अराउंड इट.
और ग्रैनुलोसा सेल्स उसके आसपास डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है कि साथ ही एक थीका सेल्स भी डिपॉजिट हो जाते हैं। देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ द थीका सेल्स। दिस थीका सेल्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द ओवेरियन कॉर्टेक्स। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स भी मल्टीलेयर्ड हो जाते हैं और उसके बाद एक थीका सेल्स की लेयर बन जाती है। थीका सेल्स बेसिकली कंट्रीब्यूटेड बाय द ओवेरियन कॉर्टेक्स। तो इस स्ट्रक्चर को मैं सेकेंडरी फॉलिकल कहता हूँ। देन व्हाट हैपन्स स्लोली देन व्हाट हैपन्स एक दिस कैविटी विल स्टार्ट अपीयरिंग। एक कैविटी अपीयर होनी शुरू हो जाती है। जब कैविटी अपीयर होनी शुरू हो जाती है ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर, तो अब तब हम उसको टर्शरी फॉलिकल कह देते हैं। और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसके अंदर ये जो अब जिसको पहले आप ऊगोनिया कह रहे थे, अब हम इसको मैं प्राइमरी oocyte कहना शुरू कर देता हूँ। इवन प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर भी ये जब नाउ दिस ऊगोनिया इज कॉल्ड एज एन प्राइमरी oocyte। दिस जो ऊगोनिया, जो पहले हम ऊगोनिया कह रहे थे कि ऊगोनिया इज सराउंडेड बाय द फ्लैट ग्रैनुलोसा सेल्स, देन वी से दैट इट इज सराउंडेड बाय द cuboidal granulosa cells and it is called primary follicles. Primary follicles have this structure that is called primary oocyte. What happens in the secondary follicles? More granulosa cells are deposited, then there is a deposition of theca cells. This conversion of this primary follicle to the secondary follicle, they occurs after the puberty when there is a production of FSH. It is only under the influence of FSH that more granulosa cells will be added and the theca cells will be added. और साथ FSH और प्रोड्यूस होता है, तो जिससे ये इसका साइज़ और बढ़ता है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये प्राइमरी oocyte है, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल हैज़ प्राइमरी oocyte। देन इस कैविटी स्टार्ट अपीयरिंग, देन इट इज़ कॉल्ड एज एन टर्शरी फॉलिकल्स। ये जो मैंने आपको बताया था कि प्राइमोडियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल्स, इसके अंदर ये जो प्राइमरी oocyte है ये रुक जाता है, ठीक है ना, एट द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस। ये रुका होता है, प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस में रुका होता है। जब जैसी टर्शरी फॉलिकल बनती है तो साथ ही ये मियोसिस 1 कंप्लीट कर जाता है और ये अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये प्राइमरी oocyte नहीं रहते हुए ये सेकेंडरी oocyte बन जाता है और एक साथ में छोटी सी पोलर बॉडी बनती है। और सेकेंडरी oocyte जो होता है हैप्लॉइड होता है, ठीक है। ये दैट इज मतलब यू कैन से इन टर्शरी फॉलिकल एज द कैविटीज विल स्टार्ट अपीयरिंग इन द सेकेंडरी फॉलिकल वी स्टार्ट सेइंग टर्शरी फॉलिकल, एंड साइमल्टेनियसली दैट प्राइमरी oocyte विल अंडरगो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन कंप्लीट कर जाता है वो मियोसिस, या आप ये भी कह सकते हो कि मियोसिस 1 वो कंप्लीट कर जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि वो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर जो ये प्राइमरी oocyte है ये प्रोफेज 1 में रुका पड़ा हुआ था, सेकेंडरी फॉलिकल में भी रुका पड़ा हुआ था, टर्शरी फॉलिकल में वो प्रोफेज 1 कंप्लीट कर जाता है और मियोसिस 1 भी कंप्लीट कर जाता है, और जिससे कि एक सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉइड, यानी कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होती है। ये जो कैविटीज़ है बढ़नी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना, कैविटीज़ बढ़नी शुरू हो जाती हैं और ये पूरी ऐसे कैविटीज़ बढ़ जाती है और बाहर की भी जो थीका की भी लेयर है वो भी डिफ्रेंशिएट हो जाती है इनटू थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना इज देयर, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स अंदर आ जाते हैं, ये जो है अंदर सेकेंडरी oocyte आ जाता है। सेकेंडरी oocyte के जो बाहर मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, और उसके बाहर एक फर्दर लेयर आती है। ये ग्रैनुलोसा के सेल्स ही होते हैं, लेकिन अब उन सेल्स को हम कोरोना रेडिएटा कहना शुरू कर देते हैं और ये कैविटीज़ बढ़ जाती है। ये सारा जो ग्रोथ हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। शुरू में FSH का लेवल ज़्यादा होता है और ये जो FSH के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH आपने देखा कि ग्रैनुलोसा के सेल्स का भी नंबर बढ़ता गया। ये ग्रैनुलोसा के सेल्स क्या सक्रीट करते हैं? दे सक्रीट द, वी कैन आल्सो से दिस ग्रैनुलोसा सेल्स एज एन फॉलिकुलर सेल्स। इसको क्योंकि ये ग्रेफिन फॉलिकल को सराउंड कर रहे हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स या सेकेंडरी फॉलिकल्स या ये दिस इज़ अ मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल, जब पूरी की पूरी एक कैविटी बन जाती है जिसको मैं कहता हूँ एंट्रम, ठीक है। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये ऑस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे ऑस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है वो क्या करता है कि डेट विल प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ LH, मोर सिक्रीशन ऑफ LH, ठीक है ना। शुरू में FSH ज़्यादा होता है, LH थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जैसे जैसे ऑस्ट्रोजन सिक्रीट होता है फॉलिकुलर सेल से तो वो LH की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। LH की प्रोडक्शन के बढ़ने से, और ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें आपने देखा कि एक प्राइमोडियल फॉलिकल एक मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हुई है,
इसको हम फॉलिकुलोजेनेसिस का नाम देते हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बन जाती है, इसको बनने में अराउंड 12 to 13 डेज ही लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही LH का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और उधर से मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल भी बन जाती है। मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल है ये शिफ्ट कर जाती है ओवेरियन मेम्ब्रेन पे, ओवेरियन मेम्ब्रेन तक ये शिफ्ट कर जाती है, ठीक है ना। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH क्या होता है कि ओवुलेशन हो जाती है, ठीक है ना, ओवुलेशन हो जाती है। अगर आप एक ये देखोगे जो ओवुलेशन में जो प्रोडक्ट आया, इसमें दिस इज द सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना, विच इज सराउंडेड बाई ए यू कैन आल्सो से एन ओवम इज देयर और यंग ओवम इज देयर। इसका जो साइज होता है 100 म्यूमीटर तक होता है। इट इज सराउंडेड बाई ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट हैज ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज देयर। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज लार्ज। वी से इट इज ए जर्मिनल वेसिकल विद ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। दे हैव ए गुड अमाउंट ऑफ RNA, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक ये लेयर चल रही है, ये रेड कलर से, जिसको मैं कहता हूँ जोना पेलुसिडा। इट इज ए नॉन सेलुलर लेयर्स। It is formed both by the oocyte as well as this follicular cells. The space between the plasma membrane and that of the zona pellucida is called as an perivitelline space. और जो वो सेल जो ग्रैनुलोसा के सेल या फॉलिकुलर के सेल जो उसके आसपास होते हैं, तो उसको हम कोरोना रेडिएटा कह देते हैं। और उनकी कुछ प्रोजेक्शंस भी जो होती हैं वो हमने देखा कि वो जोना पेलुसिडा के अंदर तक जाती हैं। और ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं ये आपस में जुड़े होते हैं बाय द हाइलोयूरोनिक एसिड, ठीक है ना। दिस इज द हाउ दिस oocyte जो सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। अगर हम इसको मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल को देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो अंदर का जो सेकेंडरी oocyte था दैट इज अटैच विद दैट ऑफ द मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ये जो पेरिफ्री में जो सेल्स हैं, पेरिफ्री में तो एक आ गया थीका एक्सटर्ना आ गया, थीका इंटरना आ गया। फिर ये नीले रंग से बनाया थीका एक्सटर्ना, लाल रंग से बताया थीका इंटरना, ये पेंसिल से बनाया हुआ है, दैट इज द मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स। ये अटैच हुए होते हैं बाय द सेकेंडरी oocyte। ये यहाँ पे एक छोटी सी प्रोजेक्शंस निकलती है जिसको मैं जर्म हिल भी कहता हूँ या कॉमुलस सूफोरस भी कहता हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम है, मैं उसको बताता हूँ, उसमें बड़ा अच्छा क्लियरली दिया गया है जर्म हिल के बारे में। ये देखिए, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज एन जर्म हिल और कॉमुलस सूफोरस। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के सेल्स आगे, ये अंदर सारा जो सेकेंडरी oocyte है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा है, कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं। और ये जो है दैट इज अटैच विद द मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बाय द कॉमुलस सूफोरस इज देयर, ठीक है जी। ये चीज़ आ गई। जब ओवुलेशन हो गई तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये जो बाकी के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो अंदर ही रह जाते हैं। अब फॉलिकुलर और ये जो कैविटी होती है जिसको मैंने बताया था एंट्रम जिसको हम कहते हैं, इस कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है ना। इसके कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको लीकर फॉलिकुलाई कह देते हैं, ठीक है। वही फ्लूइड इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर है ये। और ये जो बाहर के जो सेल्स होते हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, उसके अंदर अब अपने अंदर येलो कलर का पिगमेंट डेवलप कर लेते हैं, तो जिसको हम ल्यूटिन कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको मैं कहता हूँ कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, ठीक है ना। ये मेनली प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, ऑस्ट्रोजन भी सिक्रीट थोड़ा कम करता है। अगर तो प्रेगनेंसी हो जाए, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, अगर तो प्रेगनेंसी हो जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहती है। और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए शुरू में LH चाहिए होता है। इट इज़ LH विच विल मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो बाद में फिर एक स्पेशल हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, वो इसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी ना हो तो ये कुछ दिन के बाद ये डीजनरेट कर जाती है, जिसको हम बोल देते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस आर देयर, ठीक है ना। ये देखो, ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ये कैसे कॉर्पस ल्यूटियम बन गई पूरी। और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये कुछ दिनों के बाद ये जो है डीजनरेट कर जाती है, जिसको बोलते हैं हम कॉर्पस एल्बिकेंस भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक 60 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाती हैं, बाकी डीजनरेट कर जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया, ठीक है ना। वी नेम इट एज, वी यूज द वर्ड फॉलिकुलर एट्रेशिया। और जो फॉलिकुलर एट्रेशिया का वर्ड यूज़ किया जाता है, और जो फॉलिकल डीजनरेट हो रही होती हैं उसको बोलते हैं
एट्रिटिक फॉलिकल, एट्रिटिक फॉलिकल्स। और ये एट्रिटिक फॉलिकल जो हैं ये इंटरस्टिशियल सेल की तरह बिहेव करती है, जैसे मैंने टेस्टिस में बताया था कि इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल की तरह बिहेव करती हैं और दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंड्रोजेंस वगैरह भी बनाती हैं। तो हमने ये देख लिया कि कैसे ओवरी के अंदर फॉलिकुलोजेनेसिस हुई, कैसे ओवुलेशन हुई और ये कॉर्पस ल्यूटियम बना, फिर कॉर्पल एल्बिकेंस बना। और ये जो सेकेंडरी oocyte आया मैंने देखा कि इसका साइज़ जो है 100 म्यूमीटर तक होता है और ये इट इज़ विदाउट जो ओवम है जिसको हम ओवम भी कहते हैं, इट इज़ विदाउट शेल, इसको कहेंगे नॉन क्लाइडोइक एग। और इसके अंदर जो देयर इज़ नो योक इज़ देयर, ठीक है, एलिसाइथल होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है बड़ा हो जाता है, उसका न्यूक्लियोप्लाज्म भी ज़्यादा होता है, न्यूक्लियोलस भी ज़्यादा होता है, इसको हम जर्मिनल वेसिकल्स कहते हैं। आरएनए का अमाउंट ज़्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। ये पोलर बॉडी साइड में बनी हुई है और जिस साइड पोलर बॉडी होती है वो हम एनिमल पोल ले लेते हैं और दूसरा साइड वेजिटल पोल ले लेते हैं। जोना पेलुसिडा से सराउंडेड होती है। जो जोना पेलुसिडा है, जो जोना पेलुसिडा है, इट इज़ ए नॉन सेलुलर लेयर एंड दिस लेयर इज़ बेसिकली फाउंड बाय द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस फॉलिकुलर सेल्स आर देयर, ठीक है। और इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर की तरफ ही एक कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। और ये देखा गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लस ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसके बाद और कोरोना रेडिएटा जो होगी, दे हैव ए रिसेप्टर फॉर द स्पर्म्स आर देयर, ठीक है ना। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, ठीक है, तो दे हैव ए रिसेप्टर फॉर द स्पर्म, स्पर्म के लिए उनके पास रिसेप्टर जो होते हैं दे आर प्रेजेंट, ठीक है जी। दे हैव ए रिसेप्टर फॉर द अटैचमेंट ऑफ द स्पर्म इज देयर, ठीक है। जोना पेलुसिडा के पास भी और बताया, ठीक है। इवन ये लिखा हुआ है कि ओवम के पास जो कवरिंग है नॉन सेलुलर जोना पेलुसिडा आ गई और कोरोना रेडिएटा आ गई। जोना पेलुसिडा जो है डेट इज सिक्रेटेड बोथ बाय द एक्टिविटी ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स एंड द सेकेंडरी oocyte इज देयर, ठीक है। और जोना पेलुसिडा के ऊपर, ठीक है, जोना पेलुसिडा के ऊपर दे हैव ए केमिकल, दे हैव ए रिसेप्टर फॉर द अटैचमेंट ऑफ द स्पर्म इज देयर, ठीक है। इसमें एनिमल पोल के बारे में बता दिया, वेजिटल पोल के बारे में बता दिया, ठीक है ना। एनिमल पोल इज टुवर्ड्स द पोलर बॉडी, वेजिटल पोल आ गया, ooप्लाज्म आ गया, ठीक है। और जो रिसेप्टर फॉर द स्पर्म है दे आर प्रेजेंट ऑन द जोना पेलुसिडा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके कारण दे कैन आल्सो ज्वाइन विद इट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये जोना पेलुसिडा दे हैव आल्सो बियर्स द इन ग्रोथ ऑफ दिस सराउंडिंग फॉलिकुलर सेल्स, जिसको हम कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं, ठीक है। ये इसको नरिश करने में भी हेल्प करते हैं। और साथ में ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स जो होते हैं दे आर अटैच बाय द हाइलोजुरोनिक एसिड। ये आप देख रहे हो कि कैसे जो जोना पेलुसिडा के अंदर दे हैव ए इन्वेजिनेशन बाय दिस फॉलिकुलर सेल्स और कोरोना रेडिएटा सेल्स आर देयर, ठीक है। तो इसके बारे में हमने देख लिया कि कैसे ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और जो oocyte आता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।